مشہور و معروف ہائیگام ویٹ لینڈ شمالی کشمیر کے سوپور میں واقع ہے۔ دنیا کے مختلف علاقوں سے مہمان پرندے اس ویٹ لینڈ کا رخ کرتے ہیں۔ امسال مہمان پرندوں کی کافی تعداد یہاں آ چکی ہے۔ متعلقہ محکمے سے وابستہ ایک اہلکار نے کہا کہ آنے والے مہینوں میں پرندوں کی تعداد اور بڑھ جائے گی اور ہم سب خوش ہیں۔ یہ بہت خوشی کی بات ہے، مسرت کی بات ہے کہ اس سال اکتوبر کے مہینے میں لاکھ کے ابو ہے یہاں اس وقت برڈز موجود ہے۔ یہ تو ہماری قسمت ہے۔ انشاءاللہ امید کرتا ہوں کہ آنے والے مہینوں کو جو خاص کر جنوری فروری تک لاکھوں کی تعداد میں ہوں گے۔ یہ ہیں میلرڈ، ایل، پینٹیل، گیدول، شاولر، پیجن، بہت ساری قسم کے بہت سے اسپیشیز آتے ہیں ہمارے ویٹ لینڈ میں۔ فروری میں گیز بھی آتے ہیں۔ یہ مانا جاتا ہے ویٹ لینڈ اس کو رامسر سائٹ بھی ڈیسائیڈ کیا گیا ہے۔ کو آپ نے خود دیکھا ہے کتنا خوبصورت ہے، فیمس کی بات ہی نہیں ہے۔ وہ آپ تو بولتے ہیں کہ فیمس کیوں ہے، یہ تو فیمس ہے ویٹ لینڈ۔ آپ نے خود دیکھا کتنا خوبصورت ہے اندر یہ ویٹ لینڈ۔ یہ ہمارا ویٹ لینڈ ہے 2021 ہم نے ڈیمارکیشن کی ہے۔ یہ 7.25 اسکوائر کلومیٹر ہے اور کنال میں 14,332 کنال ہے۔ یہ شوپیاں پولیس اسٹیشن میں پولیس کی کمیونٹی پارٹنرشپ پروگرام منعقد ہوا، جس کا مقصد عوام اور پولیس کے درمیان روابط کو مضبوط بنانا اور عوامی مسائل کا ازالہ کرنا تھا۔ اس پروگرام کی صدارت سینئر سپرنٹینڈنٹ آف پولیس شوپیاں مشتاق احمد چودھری نے کی۔ اس موقع پر مقامی لوگوں، تاجروں، سماجی کارکنوں اور دیگر افراد نے ٹریفک مسائل، منشیات کے رجحان اور دیگر امور پر روشنی ڈالی۔ ایس ایس پی شوپیاں نے یقین دلایا کہ عوامی شکایت پر فوری کارروائی کی جائے گی۔ اس پروگرام میں ڈی ایس پی امتیاز احمد، ایس ایچ او شبیر احمد اور دیگر پولیس عہدیداروں نے شرکت کی۔ آج یہاں پبلک میٹنگ تھی، دربار تو نہیں میں کہوں گا۔ اس پبلک میٹنگ میں ہم نے لوگوں کو یہاں انوائٹ کیا تھا اور ان کے جو ایشوز ہیں ان کو سمجھنے کی کوشش کی۔ شوپیاں کے ایشوز کیا ہیں، یہاں کی جنرل پبلک کے ایشوز کیا ہیں، اس پہ ہمیں کس طرح کام کرنا ہے۔ پولیس اور پبلک کا جو ایک آپس کا کوآرڈینیشن ہے، اس کوآرڈینیشن کو بحال رکھتے ہوئے اور جرائم کو اس سے مائنس کرتے ہوئے ہم لوگوں نے ایک اسٹریٹجی جو بنانی ہے، اس کے لیے جو ایک پبلک کا فیڈ بیک چاہیے تھا۔ اور میں یہ بڑی خوشائن بات ہے کہ جس طرح شوپیاں کے ذی شعور عوام نے اس پہ بڑھ چڑھ کر حصہ لیا اور اپنے جو مشورے تھے ان سے ہمیں نوازا ہے، اس پہ کام کریں۔ دیکھیں جی، پولیس کے ریلیٹڈ تو آج سے ہی حال ہونا شروع ہو جائیں گے، ابھی سے۔ پونچھ سب ضلع میڈھر میں ایس او جی کی ایک ٹیم گشت کے دوران اچانک پھسل کر نیچے گر گئی، جس کے نتیجے میں گاڑی میں سوار 4 ایس او جی کے ملازم زخمی ہو گئے، جنہیں علاج کے لیے سب ضلع اسپتال میڈھر منتقل کر دیا گیا، جہاں ان کا علاج جاری ہے اور ان کی حالت مستحکم ہے۔ آج شام کو ایک انفارمیشن ریسیو ہوئی کہ ایک پولیس وہیکل جو اپنے آفیشیل ڈیوٹی پرفارم کر رہی تھی کہیں گھسائی میں، تو وہاں ان کا یہ روڈ اسپیڈ آف ہوئی گاڑی، اس میں سے 4 بندے جو ہیں وہ انجرڈ ہیں۔ جب ہمیں انفارمیشن ملی ہم نے اپنی ایمبولینس یہاں سے ریسٹ کروائی، ریسکیو کیا اور ریسکیو کرتے مینٹل ہاسپٹل میں شفٹ کیا۔ ابھی تک 4 کا یہاں پہ سب ڈسٹرکٹ ہاسپٹل مینٹل میں علاج چل رہا ہے اور سارے۔ نیشنل انسٹی ٹیوٹ آف ٹیکنالوجی سری نگر میں 2 روزہ تقریب رنگ چنار کا انعقاد کیا گیا۔ اس تقریب میں فنون لطیفہ، توانائی اور طلباء کی تخلیقی صلاحیتوں کو فروغ دینے کے لیے مختلف سرگرمیاں پیش کی گئیں۔ اس تقریب میں طلباء نے شرکت کی، اس تقریب سے متعلق بات بھی کی۔ آئیے دیکھتے ہیں طلباء نے کیا کچھ کہا۔ So this is organized under Students Gymkhana of NIT Srinagar. So this time we are having a theme of roots and rhythms. So we are trying to bring the traditional touch to the events here this time. So different Eastern, Western of India itself. So the different art forms are there. So and there are like 4 pro shows this time lined up. Last time there were only like 2 pro shows. Now we have got made it a little bigger this time, like 4 pro shows are there. ہے اور میں اس پورے فیسٹ کا اسٹوڈنٹ چیئر پرسن ہوں۔ بیسیکلی اس فیسٹ میں یہ ہو رہا ہے کہ فوڈ سٹالس اور بزنس سٹالس لگے ہیں اور بہت ساری پرفارمنس بھی ہو رہی ہیں، سنگنگ، ڈراما، آرٹ اور یہ سب چیزیں ہیں۔ اور ہمارے بیسیکلی یہاں پہ 3 وینیو ہیں، پہلا ایک کامن ہال ہے، اوپن مائک اسٹیج اور مین اسٹیج ہے۔ تو کامن ہال میں بیسیکلی ڈانس کے ایونٹس ہو رہے ہیں، سنگنگ کے ایونٹس ہو رہے ہیں، اوپن مائک پہ ریپ ہو رہا ہے، بیٹ باکس ہو رہا ہے۔ مین اسٹیج پہ آپ اگر پیچھے دیکھو گے تو وہاں پہ اپنا کوریو نائٹ چل رہا ہے، مسٹر مس رنگے چنار چل رہا ہے۔ خانہ اور میں NIT سری نگر کا اسٹوڈنٹ ہوں، سول انجینئرنگ کا۔ اور بیسیکلی آج رنگے چنار ہو رہے ہیں 25
5 और 26 अक्टूबर को ये ऑर्गेनाइज कराया जा रहा है NIT श्रीनगर की तरफ से। ये जम्मू कश्मीर का बहुत ही बड़ा फेस्ट है और इसमें 50+ स्कूल्स कॉलेजेस अक्रॉस द कश्मीर वैली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जिसमें बहुत सारे बच्चे आके यहाँ अपना टैलेंट शो कर रहे हैं। बेसिकली ये बहुत ही अच्छा इनिशिएटिव भी है और ये रंगे चिनार 2.0 जो हो रहा है, इसमें बहुत सारे बच्चे आके अपना परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बिजनेस स्टॉल्स खुल रहे हैं। यहाँ से आप देख रहे हैं ये अब कश्मीर का फूड स्टॉल लग रहा है, कल्चरल टच दे रहे हैं। बहुत सारी डाइवर्सिटी है, तमिलनाडु का, कन्याकुमारी से कश्मीर तक जितने भी आर्ट और कल्चर हैं उसको टच दिया जा रहा है इसमें, तो ये बहुत ही अच्छी रंगे चिनार इज बेसिकली एनुअल फेस्ट ऑफ नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी श्रीनगर। यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स होते हैं एंड आई एम फ्रॉम द स्पॉन्सरशिप टीम, तो हमारा काम था टू पिच एंड ऑन बोर्ड डिफरेंट स्टॉल्स, डिफरेंट बिजनेस जो यहाँ पे अपना बिजनेस जो है रिप्रेजेंट कर रहे हैं, अपना बिजनेस शोकेस कर रहे हैं। और मार्केटिंग के लिए भी एक बहुत अच्छा प्लेटफॉर्म है। यहाँ पे डिफरेंट इवेंट्स हुए, ऑलमोस्ट 50+ इवेंट्स यहाँ पे हुए, जहाँ पे डिफरेंट कॉलेज, डिफरेंट स्कूल्स के बच्चों ने पार्टिसिपेट किया और उनको अपॉर्चुनिटी मिली यहाँ पे अपने आप को रिप्रेजेंट करने की, अपने स्कूल को रिप्रेजेंट करने के लिए। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड ये हमारे कॉलेज के लिए भी बहुत अच्छी बात है कि हमारा कॉलेज भी से प्रमोट हो रहा है एंड कंपनीज वगैरह जो है प्लेसमेंट्स के लिए उनको पता चल रहा है हमारे कॉलेज के बारे में एंड हमारे इवेंट्स के बारे में। पुंछ में हिंदुस्तानी फ़ौज ने तलबा के लिए एक टैलेंट हंट मुकाबले का इनेकाद किया। इस प्रोग्राम में मुख्तलिफ स्कूलों के तलबा ने अपनी सलाहियतों का मुजाहरा किया और मुख्तलिफ तकरीरी, सकाफती और तख्लीकी सरगर्मियों में हिस्सा लिया। इन सारे बच्चों की हौसला अफजाई की, इनको इनका जो टैलेंट है उसको उभारने की कोशिश की है। यही चीजें हैं जो जरूरत है इस वक्त इन बच्चों के लिए। ये दूर दराज पिछड़े हुए इलाके से आते हैं, अनपढ़ लोगों के, अनपढ़ घरों की नुमाइंदगी करते हैं और इस तरह की बातें जाके घरों में फैलाएंगे और आने वाले वक्त में इनको बहुत सारे मौके मैसर होंगे जिनसे ये फायदा उठा के इंशाल्लाह जिंदगी की अपनी अगली मंजिल भी तय करेंगे। हम आपसे इसी को रखते हैं कि ये इस तरह के प्रोग्राम और भी हों और इन हमारे बच्चों की हौसला अफजाई होती रहे। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया। मैं साथ देने का वादा करता हूँ। यहाँ बहुत दूर आए हैं, यहाँ देखेंगे जहाँ से ये स्कूल के बच्चे आए हैं। ये लास्ट टॉप आपकी जो है वो है अपना KG टॉप, उससे नीचे जो है खजूर तोड़ा बहुत बड़ा, वो बहुत दूर स्कूल है, वहां से आए हैं। कश्ती वहां से आए हैं, तो इन बच्चों को पैदल भी चलना होता है। इनके बहुत गुर्बत भी है इस इलाके में, खासकर ये एरिया आप गनी का देखें तो जो आपने ये सिलसिला शुरू किया है, हम एक एक घर में जाके एक एक मोती को तलाश करेंगे और उन मोतियों को हमने सामने लाना है और उनको तराश के खराश के जो है एक हीरा बना के आगे पेश करना है। इस कंपटीशन को अच्छा अंजाम देने के लिए पहले तो मेरा जब आप लोगों को देखता हूँ कि मैं बचपन में मैं क्या करता था, मैं उसको सोचता हूँ, ठीक है। तो टैलेंट क्या है, टैलेंट को अगर आप लेके चलेंगे हिंदी में या उर्दू में, उसका मतलब है हुनर। इस टैलेंट को लाने के लिए जो भी बच्चे इस स्टेज के ऊपर आके थोड़ा सा गाना गाया, किसी ने डांस किया, उसके लिए आपको चाहिए हिम्मत। हिम्मत नहीं होगा, इतने ऑडियंस के सामने हम लोग इसके ऊपर खड़े होकर डांस गाना नहीं कर पाएंगे। ये सब चीजें मैं मेरे बचपन में करता था मेरे स्कूल में। तीसरा पॉइंट है, जब आपके हुनर है, हिम्मत दिखा दिया, आप में हौसला है, तभी आप आके यहाँ पे कर गए, तभी आपका जीत हासिल है। और हमारा जो बटालियन है उसका जो लोगो है वो हिम्मत, हौसला, जीत है। इसके साथ मैं आप सभी को तहे दिल से शुक्रगुजार करूंगा। एंड मैं जब हमारे प्रिंसिपल साहब ने जो बोला, शाह साहब ने बोला, ब्राज साहब ने बोला कि यहाँ पे, और इवन प्रिंसिपल सागरा में जिनसे बैठ के बहुत दिल से बात किया था यहाँ पे इंडिपेंडेंस डे पे, मुझे इतना यकीन है कि हमारे जो बच्चे हैं वो कहाँ से आते हैं, किस तरह जो मुश्किलात के साथ वो आके। कश्मीर की सेहत को फ़रोग़ देने के लिए एक इवेंट का एहतमाम किया गया। इस दौरान सयाहों को यकीन दिलाया गया कि कश्मीर एक महफूज मुकाम है। अब देखिए खास रिपोर्ट। हमें दीजिए इजाज़त। आदाब। चलो कश्मीर, चलो कश्मीर, चलो कश्मीर। मुंबई के एक टूर एंड ट्रैवल एजेंसी ने पहलगाम हमले के बाद सेहत को फ़रोग़ देने के लिए पहला फेम टूर चलो कश्मीर का एहतमाम किया। वादी में सेहत के फ़रोग़ और सयाहों में एतमाद पैदा करने की तरफ एक अहम कदम उठाते हुए मुंबई के ट्रैवल एजेंसी ने इस दौरे को मुनज़्ज़म करने के लिए कश्मीर के हाउस बोट ऑनर्स एसोसिएशन के साथ ताउन किया। इस इक़दाम का मकसद सयाहों को यकीन दिलाना है कि कश्मीर एक
महफूज मुकाम है। हम लोग 26 साल से कश्मीर की टूर्स कर रहे हैं और साल में ऑलमोस्ट 5 से 6 महीना तक हमारे कश्मीर की रूट चल रही है और लास्ट 5 साल से कश्मीर का गोल्डन एरा, जिसे हम सुवर्ण काल बोलते हैं, ऐसा गोल्डन एरा आया था और बहुत बढ़िया काम चला था। ऐसे थी कि रूम मिलना मुश्किल हो रहा था, ऐसा दौर चला था। अनफॉर्चुनेटली 22 अप्रैल को ये पहलगाम का हादसा हुआ, बाद में टूरिज्म डाउन गया, थोड़ा लोग सदमे में थे, शौक में थे, थोड़ा गुस्सा भी था लोगों को और उसकी असर टूरिज्म पर पड़ी। लेकिन हमने 26 साल से ये कैंपेन चलाई, यहाँ काफी अप डाउन आए, चाहे बुरहान वानी का इंसिडेंट हो या पुलवामा अटैक हो या 370 एब्रोगेशन हो या कोविड हो, हर साल जब ये क्राइसिस आई तभी हमने आगे आके फ्रंट में रह के एक कैंपेन चलाया, चलो कश्मीर, प्रमोट कश्मीर, लव कश्मीर। जम्मू कश्मीर के महकमे सियाहत ने इस इकदाम का खैर मकदम करते हुए इसे सयाहों का एतमाद बहाल करने और मुल्क भर की सियाहती सनत के साथ ताल्लुकात को मजबूत बनाने की जानिब एक मुस्बत कदम करार दिया। ये अच्छा इनिशिएटिव है, ऐसे हमें इनिशिएटिव की ज़रूरत है, ऐसे हमें फैम टूर की ज़रूरत है, ऐसे हमें एक्टिविटीज़ की ज़रूरत है। आपको पता ही है जो 22 अप्रैल के दिन जो यहाँ पे एपिसोड हुआ है, पूरा डिस्टर्ब टूरिज्म हुआ है। हालांकि हमने भी बहुत सारे रोड शोज किए हैं, बहुत सारे प्रोग्राम किए बाहर के स्टेटों में, लेकिन जो यहाँ पे सतीश सर ने गुजरात से टूरिस्ट लाए हैं, हम चाहते हैं कि ये जो टूरिस्ट यहाँ आए हैं ये खुद लाइव देखे यहाँ पे कश्मीर में पीस है, कोई दिक्कत नहीं है, कोई परेशानी है। कहीं ना कहीं एक टूरिस्ट को जो डर है कि पहलगाम के बाद जो हालात है शायद वही हालात अभी भी है, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हम चाहते हैं कि टूरिस्ट यहाँ पे आए, हम इनको वेलकम करते हैं। जैसे महाराष्ट्र से भी, गुजरात से भी अभी एक 25 पैक्स का ग्रुप आया है, हमने इनको भी वेलकम किया है। मुल्क भर से बहुत से सयाहों ने इसमें शिरकत की और इन्होंने इस इक़दाम के लिए मुंतज़मीन से इज़हार तशक्कुर किया। ये हमारा टूर है जो हम लोग ने ये कैंपेन चालू किया है कि चलो कश्मीर करके, और पूजा हॉलीडेज से हम लोग आए हुए हैं, तो मतलब बहुत ही मज़ा आ रहा है। और हमारा आज 7th डे है, तो मतलब हमारा तो इतना मेमोरेबल डेज रहा है कश्मीर में, तो कश्मीर आना ही चाहिए। सयाहों का कहना है कि इस तरह की तकरीबात से न सिर्फ सियाहत को फ़रोग़ मिलता है बल्कि कश्मीर की छवि भी बेहतर होती है। ब्यूरो रिपोर्ट, मुंसिफ टीवी। आपको रखे बाखबर, देखिए मुंसिफ टीवी, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। स्क्रीन पर दिया गया बटन जरूर दबाइए।